Fine. I think all of you are present over here. Yes, ma'am. Good. And we are done with the digestive system and digestion and everything is done, right? Yes, ma'am. Okay. Now we have the respiratory system to be started, or we have finished somewhat in it. Just let me know. Now we are about to start. We are about to start. Okay, fine. Last day you given made us to draw the diagram of the alimentary channel. Okay, fine. Okay, so today we will start begin with the respiratory system. I think that is the second system is given in this chapter. After Yes, ma'am. after digestion, respiration is given. Yes, ma'am. Okay, so let's begin with respiratory system. Okay, now see this. What you have to understand regarding this is that we will understand some of the terms first of all. So let's see that we generally, when we talk about something that is called exchange of gases, that is breathing. Okay, breathing is a process of respiration only. Okay, that means if breathing, I will say that means intake of oxygen and release of CO2. Okay, that is called breathing. Normal process. No logical explanation regarding this is there. But if you talk about the word respiration, if I say respiration, then respiration occurs at different level. Okay, the one which involves the whole system, जो अभी हम पढ़ेंगे, और एक होता है हमारी बॉडी में which involves the system, and another one is cellular respiration. So I'm just giving you an outline because there are some books will make you explain that cellular respiration जैसी भी कुछ चीज होती है. That means आपके बॉडी का हर सेल जो है वो रेस्पायर कर रहा है. Okay, so respiration is also basically we will say exchange of respiratory gases. Very important thing that you should use the term respiratory gases. हम कोई भी gases को exchange नहीं कर रहे हैं. We are just talking about oxygen and CO2. Okay, so when we say cellular respiration, then what happens that each and every cell, if I talk about, in this cell, glucose, the molecule of the sugar, okay, C6H12O6, it should be utilized to release एनर्जी. ओके, आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में कंज्यूम करते हो दैट हैज वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट को निकालना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करना, एंड दैट ग्लूकोज हैज टू, क्योंकि सेल जो है वो बहुत छोटा है,
तो सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं जा सकता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीमर, it's a big chain. So big chain cannot enter the cell, but glucose is a single molecule. It can enter the cell. तो ये टर्न बाय टर्न जो है वो अंदर जा सकते हैं. If bonds are broken, then only it can move inside and it can be utilized by cell. So glucose को convert करना या utilize करना so that energy can be produced, that process is called cellular respiration. Okay, a very simple thing I am giving you over here. Now, basically, if we generalize the things like this, so you will understand that cellular respiration की बात हो रही है, तो हमको ये terms जरूर consider करने हैं. That is aerobic, and another one is anaerobic. Okay, so aerobic means presence of oxygen is obligatory or compulsory. Without presence of O2, अब जैसे लोअर क्लासेस के डेफिनेशंस होते हैं कि एयर के प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इट्स नॉट एयर. अंडरस्टैंड दिस, presence of oxygen is must when you talk about aerobic respiration, and when you talk about anaerobic respiration, that means absence of O2. Okay, absence of O2 will lead to anaerobic respiration. Is it clear to you? Okay, now see this. Yes. See this. What happens actually when you talk about aerobic and anaerobic respiration? Okay, so aerobic, if I say, that means cell is utilizing oxygen for breakdown of glucose C6H12O6 with the help of oxygen. If O2 is present, then cell will give you CO2 plus H2O plus energy. This is a simple equation. I am not balancing and all that. Just understand that glucose अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, ओके, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस साथ में एनर्जी मिलेगी. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is what you have to understand regarding aerobic. Now let's take up anaerobic. If I say anaerobic, that means C6H12O6 is there, but there is no oxygen. Okay, अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि CO2 ले लो या नाइट्रोजन ले लो या कोई और गैस ले लो, ऐसा नहीं है. मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, फिर भी इसको ब्रेक डाउन करना है. ओके, सो जब ऐसे चांसेस में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो देर आर टू फॉर्मेशंस, दो पॉसिबिलिटीज है. एक हो सकता है कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो, और एक हो सकता है कि इथेनॉल की फॉर्मेशन. ओके, इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so these are the things you have to understand. Glucose will produce lactic acid or ethanol produce with what? Ethanol or lactic acid, what? Now, glucose reactive and without this respiration, glucose may release lactic acid with ethanol. But in what condition? But in what? The conditions. What condition? That is what I am saying. There is no supply of oxygen to the cell. Okay? When oxygen is not being supplied to the cell, then breakdown of glucose will occur. But instead of producing CO2, H2O and energy, it will produce lactic acid and ethanol.
Clear? Yes, ma'am. Okay, I will detail it. Don't worry. I will detail it how it is happening in your body and where it is happening. Okay. So see, basically जनरली हमारी बॉडी में ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होता रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, कंटिन्यूअस एनर्जी हमको मिलती रहती है, CO2 H2O जो है वो रिलीज होता रहता है. ओके, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. बट हमारी बॉडी में एनारोबिक प्रोसेसेस भी होते हैं. आई विल जस्ट गिव यू वन एग्जांपल दैट व्हेन सपोज if I am ordered or if I say that hold this pen or I have a cup of tea and I am holding it. Okay, I'm holding for 5 minutes, nothing will be happening. 10 minutes, okay, fine, it's okay. Then half an hour, 1 hour, if it is proceeding, then what will happen? I will feel like changing my hands and I will feel like keeping the cup down so that I can relax my fingers. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Another example I can give you that if you're writing continuously, when you're writing your papers and all that for 3 hours, you feel like that after some time when your writing is going on full pace, you feel like leaving the pen and you are jerking your hand and stretching your fingers like this so that they can be relaxed. Am I right? Yes, ma'am. Okay, so when these things are happening, at that time what happens that when you are holding something continuously or when you are sitting in one position continuously, your muscles are performing anaerobic respiration. In which condition? Because the muscles are continuously contracted state. They are not being relaxed. Okay, if the muscles are relaxed, then what will happen? They will perform aerobic respiration. If they are continuously contracted, then muscles will perform anaerobic respiration and that lead to the production of lactic acid. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay. Now these lactic acid, when they are produced in large amount, then what will happen? You feel tiredness. Okay. Suppose आपने स्कूल के ग्राउंड में फील किया होगा कि कभी कभी कोई लेक्चर होता है या कुछ फंक्शन होता है तो यू आर मेड टू सिट ऑन द ग्राउंड and just by folding your legs and you have to sit like that on the ground, right, for continuous 1 hour 2 hour, then what happens that you feel like that you have to stand up and walk. You like feel like that you should stretch your legs or change your positions. Is it happening? Yes, ma'am. The reason is when you're folding your legs, then at that time what happens? Their muscles are in continuous contraction, and continuous contraction will produce lactic acid. And when this lactic acid is produced in huge amount, at that time your muscles will become stiff, and that stiffness leads to tiredness. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, so this is what is happening now. I'm just giving you one more example that you must have experienced because nowadays you are going through online classes and all that, so continuously watching the screen and in the that brightness and all that, you must be feeling that your eyes are getting tired and you are massaging it to relax them. Are you doing that? This is what is happening. So what happens that when you're continuously watching a screen, your eyes are not blinking at the same rate it has to blink. Okay. So what happens that when then that blinking is not being done, then the eyes are continuously open like this. And if you are watching some very interesting content like on Amazon Prime series and all that, at that time you are like in the screen के क्या हो जाएगा अंदर ही हम घुस जाएंगे. ठीक है, तो स्क्रीन जब आप वॉच करते हो कंटिन्यूअसली तो आई मसल्स आर वेरी डेलिकेट, दे गेट टायर्ड. उसके बाद क्या होता है जब पढ़ाई हो जाती है ऑनलाइन तो आप क्या बोलते हो,
मम्मा बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, ठीक है, या कर लेती हूँ, ऐसा बोलते हो। तो उसके बाद क्या करते हो, आप जाते हो अपने सोफा पे बैठ के टीवी खोल के बैठ जाते हो और टीवी पे गाने देखते हो, या फिर क्या करते हो वापिस मोबाइल ले लेते हो और मोबाइल में एंटरटेनमेंट ऑन हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब आपने ऑलरेडी अपनी आईज को इतना टायर्ड कर दिया है कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो, ठीक है, एंड दोज प्लीज ये डेल और ये सब जो ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, आप अपने नाम से ज्वाइन करो, कंप्यूटर मोबाइल के नेम्स नहीं होने चाहिए, अपने नाम के साथ ज्वाइन करो ना। आपके इतने सुंदर नाम रखे हैं आपके पेरेंट्स ने, ये नाम क्यों रहने दे रहे हो? ओके, गिव कीप योर नेम्स ओवर देयर। Okay, so where was I? Yes, eyes. So your eyes are already getting tired. Then you are for entertainment also you are using your eyes continuously. फिर आप क्या बोलोगे जब रिलैक्सेशन का टाइम खत्म हो जाएगा और दूसरा पढ़ाई करने का टाइम आएगा, मैं तो आज बहुत थक गया हूँ, अब मैं क्लास या कोई भी ऑनलाइन चीज पढ़ नहीं सकता हूँ, अब मैं जाके सो जाता हूँ या खा लेता हूँ, ये सारी चीजें होती है। तो अगर आप अपनी आईज को रिलैक्सेशन का टाइम ही नहीं दोगे तो आप थक जाओगे, अंडरस्टूड दिस पार्ट, एंड द रीजन इज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। इसीलिए जब आपको ब्रेक मिलता है ना, तब थोड़ी देर आंखें बंद करके लेट जाओ ताकि आपके आई मसल्स जो है वो रिलैक्स कर सके, और उसके बाद आप जब वापस से फ्रेश होके उठोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आंखें बंद करके रिलैक्स करना है, उसका मतलब सो नहीं जाना है, ठीक है, देखते हो अच्छे से पढ़ाई करनी है वापस से उठ के। सो if you really want to relax then you can have some good music, you can just close your eyes so that your muscles will be relaxed, and then when you will study आपको जो tiredness है वो feel नहीं होगी, क्योंकि once the muscles are being relaxed suddenly aerobic respiration start हो जाएगा, लैक्टिक एसिड है वो सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और CO2 H2 और एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is what is anaerobic respiration is. ना इथेनॉल आपके घर में इडली बनती होगी या कोई बेटर्स बनते होंगे जिनमें फर्मेंटेशन की जरूरत होती है, तो मम्मा ढक के रख देती है ना उसको रात में ग्राइंड करके, तो दैट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इसलिए इडली वगैरह का बैटर सुबह खट्टा लगता है। Have you experienced? Yes, ma'am. That is a fermentation process done by anaerobic organisms. In that also breakdown of glucose is done and through that ethanol is being produced. And that process is called fermentation, that is anaerobic respiration process. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. let's see then next one. Okay, so next is let's talk about the respiratory system of humans. अच्छा, बिकॉज आपने क्लास 9th में एक बहुत अच्छा चैप्टर जो है वो एलिमिनेट कर लिया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दैट यू हैड दैट क्लासिफिकेशन एंड ऑल दैट। तो अगर आप वो चैप्टर पढ़ते तो शायद आपको पता होता कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे कि फिश के अंदर जो है वो गिल्स हैं, वो आपको पता होगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं डायरेक्टली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके, जैसे फ्रॉग वगैरह है वो थोड़ा बहुत एक्सचेंज ऑफ गैस अपने स्किन से ही कर लेता है। कुछ होते हैं जैसे कॉकरोचेस वगैरह, उनमें स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट्स होते हैं, स्पाइरेकल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वो आपके बुक में शायद एक दो लाइंस में दिया हुआ है आपके फिलहाल इस वाले चैप्टर में। तो आप पूछोगे मैम ये वर्ड्स कहाँ से आए, तो ये वर्ड्स क्लास 9th की टेक्स्ट बुक से आए हैं, जो चैप्टर आपने
छोड़ दिया है, ठीक है। तो डोंट वरी, अब तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है उसको पढ़ने की, तो आप एक काम करना कि जो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, जैसे फिश दिया हुआ है तो फिश के पास गिल्स लिख के ऐसे करके आपको सब लर्न कर लेना है कि फिश के लिए क्या है, कॉकरोचेस के लिए क्या है, देन बाकी जो भी एनिमल्स दिए हैं उनके लिए क्या क्या है, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न लाइक दैट। वो क्यों आए कैसे आए हैं वो अगर आपको डिटेल जानना है तो क्लास 9 का चैप्टर है जो आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल हम यहाँ ह्यूमंस की बात करते हैं, रिगार्डिंग ह्यूमंस बेटर है कि इन्हीं का पढ़ लेते हैं। वी यू हैव सर्टेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, okay, arranged sequence in a sequential manner and through which the respiratory system works. Okay, so definitely it starts with nostrils, जो opening है nostrils, then definitely nose, okay, nose के बाद आएगा, यहाँ पर भी हम लेंगे pharynx, then comes larynx, ओके। फेरिंग्स लैरिंग्स आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंक्लूड किया था, तो घबराओ मत कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं। हमने उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आप जो बोलते हो ना फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ साथ में क्योंकि प्रेजेंट है, तो वो वहां पर इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो फेरिंग्स और लैरिंग्स भी प्रेजेंट होंगे। देन यू हैव ट्रैकिया, योर विश। Then you have bronchi. I think you should write. Okay? क्योंकि यहाँ पर वो नहीं हो रहा है ना प्रवचन, तो अगर वो नहीं हो रहा है तो आप लिखो bronchi. Okay? Then bronchi are classified as bronchioles. Bronchioles से जाएगा alveoli. Alveoli means lungs के यूनिट। And the four lungs, what you have written? Bronchioles. I will write it again over here. Switch off your mics. Shall I proceed? Yes, ma'am. Okay. So nostrils. If I say anything about nostrils, they are two openings and they are divided, or they have one partition that is made up of cartilage. Okay, it is made up of cartilage, bit softer and but it should have little bit of strength so that it can hold the things easily. And these nostrils are having presence of hairs in them. Okay, so hairs are there and these hairs have some of the mucus attached to them. Now this region is responsible for, सबसे पहले तो ये hairs जो हैं वो बहुत सारे dust particles और काफी सारी चीजों को block कर देते हैं,
ताकि आप अगर आंधी में भी, अगर बहुत ज्यादा ऐसे आंधी आ रही है, तो वो मिट्टी जो है वो कभी आपके नाक में नहीं घुसता है। रीजन इज योर these hairs which are present in the nostrils, they keep on beating continuously, it beat करते हैं पर वो आपको दिखेंगे नहीं, they keep on moving so that the dust particles should not settle down in your nose. Okay, so these hairs are having a very important function, and they have little bit of mucus with it, so that whatever air which is moving inside, it should be have little bit of moisture with it. आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब ठंडी में आप कभी गाड़ी पे जाते हो तो ड्राई हो जाता है नोज बहुत बार। ठीक है, ड्राई क्यों हो जाता है? क्योंकि मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, और उस वजह से आप जब सांस लेते हो तो कई बार यहाँ पर दर्द होने लगता है। ठीक है, तो मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, और वो किसकी वजह से आता है? म्यूकस की वजह से। तो हेयर्स है, म्यूकस है, और वो क्या करता है कि आप कितनी भी, आप साइबेरिया में भी अगर सांस ले रहे हो, जब आप अपनी ब्रीदिंग को बाहर करोगे, इवन यू विल एक्सेल आउट, तब भी आपके अंदर से गर्म हवा ही जो है वो बाहर आएगी। बर्फ की जगह में हो तो ठंडी हवा अंदर जा रही है, तो ठंडी हवा कभी भी नहीं रिलीज होती है, इट इज कंप्लीटली वार्म। तो ये सारा मेंटेनेंस जो है वो यहीं पर हो जाता है, अबव द नॉस्ट्रल्स। यहीं पर वो हवा जो है वो अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली गर्म हो जाती है और मॉइस्ट हो जाती है, सो दैट इट कैन पास ऑन इजीली थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. nostrils is nothing but nostrils opening है। okay, nostrils क्या है? opening है, और उसके बाद जो चीज है वो nose है पूरा। ठीक है, so nose is then followed by pharynx। okay, nose is followed by pharynx, मतलब आपके इस रीजन में एक बड़ा सा कैविटी है। ठीक है, तो नोज से जब हवा जाती है तो वो हवा जो है वो इस जगह पर घूमकर और फिर वो कहाँ आकर ऐड हो जाती है? वापस से फैरिंग्स के बीच। तभी आपने सुना होगा कि ईएनटी का डॉक्टर होता है, सुना है? Yes, ma'am. ईएनटी, Ear, nose, throat. ईयर, नोज और थ्रोट। रीजन इज ईयर्स, नोज और थ्रोट सब कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो दैट इज वाई ये जितनी भी एयर है वो अब कहाँ पर आ जाती है? वेर योर फैरिंग्स इज लाइन। सो दिस फैरिंग्स, ये जो है आपका, जब माउथ जहां पर खत्म होता है वहां पर फैरिंग्स की पोजीशन होती है। ओके, सो वेर योर माउथ एंड्स, द फर्स्ट थिंग यू विल टच इज कॉल्ड pharynx। ओके, दिस pharynx इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दोनों के लिए काम करता है, इसोफेगस के लिए भी काम करता है और ट्रैकिया मतलब जो आपकी ये विंड पाइप है उसके लिए भी काम करता है। सो इट्स लाइक व्हेन यू आर हैविंग, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते खाते आपको सांस भी लेनी है, तो वो जो ऑल्टरनेशन मेंटेन करना है वो कौन करवाता है? फैरिंग्स करवाता है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. understood? Then comes larynx. Larynx is nothing but your voice box। okay, this voice box is present, Adam's apple या जो भी आप लोग बोलते हो in general language, these larynx or the voice box are present just after the pharynx। now see, देखो, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं, जैसे फ्लूट है, तो फ्लूट में जब तक एयर पास नहीं होगी तो वो बजेगा नहीं। ठीक है, सिमिलरली आपके जब इस पैसेज से एयर नहीं जाएगी तब तक वॉइस बॉक्स से आवाज आएगी नहीं। अंडरस्टूड? इसलिए जब आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बहुत तेजी से शाउट करते हो, एकदम एकदम जो मूवीज में देखा है, वो जब भूत आ जाता है तो हीरो और या जो भी है जोर से चिल्लाते हैं, तो they what they do, they just voice out, they just shout loud
एंड उस और एक लिमिट के बाद वो शाउट नहीं कर सकते क्योंकि सारा एयर खत्म हो गया। अब फिर से सांस लेंगे और फिर चिल्लाएंगे। ऐसा नहीं है कि चिल्ला रहे हैं तो 15 मिनट तक आ ही कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, so that is the reason air has to pass through this pharynx and larynx so that you can speak out, you can means sing, you can laugh, everything. Understood? So whenever the voice is coming, it is just because of the air passing through the larynx. Understood this part? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Understood. Now, the main thing that is coming is called trachea. So, now we will see trachea. So, trachea is something which is a long passage, just esophagus के साथ साथ ही लगा हुआ वो चलता है, ठीक है? And this trachea is made up of rings like this. और ये जो रिंग्स हैं वो कार्टिलेज से बनी हुई होती है। ओके, कार्टिलेज के रिंग्स हैं। दीज रिंग्स व्हाट दे डू इज दे कीप द ट्रैकिया इंटैक्ट। अगर ये रिंग्स नहीं होगा तो ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है? उसको एक वर्टिकल पोजीशन में मेंटेन करने के लिए रिंग्स की प्रेजेंस है। अंडरस्टूड दिस? एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप बाहर से ट्रैकिया देखोगे तो आपको रिंग्स बहुत ही क्लियरली देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, now see this, that these trachea are divided into two passages and they are called bronchus. Okay, two parts में divide हो जाता है, that is called bronchus. Now these bronchus are classified further, फिर वो थोड़ा सा और डिवाइड होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और डिवीजन होता है लाइक दिस, देन इट विल बिकम थिन पैसेजेस। सो बेसिकली आप अगर देखोगे ये ब्रांचिंग, तो दिस वन इज प्राइमरी ब्रोंकस, जो फर्स्ट है। आ रहा है समझ में? फर्स्ट डिवीजन है ट्रैकिया से, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकस। अंडरस्टूड? देन सेकेंड वन इज देयर इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकस। देन थर्ड वन, हियर आल्सो थर्ड वन। सो सेकेंडरी दो हैं, उसी तरह से टर्शरी जो होंगे वो काफी सारे होंगे। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Okay, similarly on this side also, primary bronchus, second division will make secondary bronchus, then third division will make tertiary bronchus for them. अच्छा, हो सकता है कि एक जो डिवीजन है, if I do like this, कि ये जो है वो ऐसे डिवाइड हो ज्यादा पार्ट्स, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे? सेकेंडरी होंगे, क्योंकि ज्यादा डिवाइड हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि टर्शरी बन जाएंगे। आया समझ में?
Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है? फर्स्ट ब्रांच Yes, ma'am. प्राइमरी, Yes, ma'am. Clear. फर्स्ट प्राइमरी से जो अटैच्ड है वो सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी से अटैच्ड है वो टर्शरी। अब वो 2 भी हो निकल सकते हैं, वो 3 भी निकल सकते हैं, वो 5 भी निकल सकते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. नाउ सी दिस दैट फर्दर जो डिवीजन है उसमें जो ये पैसेज है वो बहुत ही थिन हो जाते हैं, and then they are called bronchioles. Then they are called bronchioles. Now these bronchioles basically अब आप actually lungs में आ गए हो like this. Okay? तो ये जो bronchioles हैं वो जाकर टर्मिनेट होते हैं छोटे छोटे यूनिट्स पे, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। उनको हम क्या बोलते हैं? alveoli. Okay, these Ma'am, can you repeat one? okay, bronchioles will get terminated into small units called alveoli. Is it clear now? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये एल्वियोली जो है वो लंग्स के अंदर, जैसे ग्रेप्स का बंच देखा है आपने, Yes, ma'am. बस उसी तरीके से बंच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, big bunches of alveoli will be formed, are present in the lungs, and all of them will be having the excess of these respiratory tract। मतलब सभी में आकर ये bronchioles टर्मिनेट होते हैं, वो चाहे यहाँ पर हो alveoli, यहाँ पर हो या यहाँ पर। Is this part is clear to you? Yes, ma'am. ओके, ये पूरा लंग जो है वो फिल्ड है सारे छोटे यूनिट से एल्वियोलाई। सो लंग का यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। लंग का यूनिट क्या है? एल्वियोलाई। अब सी द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, दीज एल्वियोलाई, अगर मैं इनको अच्छे से आपको दिखाऊं इस तरीके से, they are just balloon like structures, okay, and these things have like this the bronchioles or bronchiolates। bronchiolates मतलब bronchiole से भी पतले और छोटे। तो bronchiolates जो हैं वो इनके मेम्ब्रेन के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाते हैं। ठीक है, so that air can diffuse through these membrane and the oxygen can enter and CO2 can be released. Is it clear to you? Yes, ma'am. Okay, at the same time they are covered by so much of blood vessel. There, so much of blood vessels. ओके, ये एल्वियोलाइज हैं, उनके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स वाली चीज तो है, साथ साथ में वो उनके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ब्लड वेसल्स भी पूरी तरीके से उसको कवर करके रखते हैं। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब ब्लड वेसल का क्या काम है, दैट पार्ट वी विल सी। सो सी दिस दैट सी, ये जो एल्वियोलाइज हैं they have bronchioles attached to them which is bringing oxygen, and blood vessels attached to them at the same time with a heavy network on them. This is how the blood vessels will be there. Okay, these blood vessels, what they will do is whenever the oxygen is coming through diffusion, they will take up the oxygen in it। ये blood क्या करेगा? सारा ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेगा और CO2 जो है वो वापस इन ब्रोंकियोल्स को दे देगा, so that when you will respire out, the CO2 should move out of the
body. Understood this? Yes, ma'am. ओके और O2 है वो डिफ्यूज होके ब्लड में मिक्स हो जाएगा और जहां जहां पर बॉडी को वो ऑक्सीजन की जरूरत है वो ब्लड के थ्रू सारा ऑक्सीजन पहुंच जाएगा. अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. Understood. Good. Now see this. When this thing is happening at the structure in this, then all these alveoli. अब आप एक चीज समझो कि लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज हैं आपके लंग में, ठीक है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज आर देयर. मैं सिर्फ एक एल्वियोलाई को लेती हूँ, ठीक है, वो क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है. तो लेट मी ओपन इट. मैं उसको ओपन करके उसका एक शीट बना देती हूँ, ठीक है. जैसे आप बुक का पेज होता है, आप उसको एकदम क्रम्बल कर देते हो, पर फिर आपको देखना है तो आप उसको खोलते हो तो आप पूरा उसको प्रेस करके सीधा करते हो, ऐसा कि होता है. Yes, ma'am. ओके. सिमिलरली एल्वियोलाई को इमेजिन करो कि एक क्रम्बल्ड एपिथेलियल टिश्यू है. इस टिश्यू को पूरा सा क्रम्बल करके लंग के अंदर डाल दिया है. ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई लंग के अंदर डाल रखे हुए हैं, ठीक है. अब आप इमेजिन करो जब आप एक एल्वियोलाई को ओपन करोगे तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा, ये स्क्रीन जितना, इतना बड़ा तो होना चाहिए ना. क्रम्बल्ड पेज है, A4 पेज, आप A4 पेज को आप क्रम्बल करते हो तो वो इतना सा हो जाता है. जब ओपन करते हो तो ये स्क्रीन जितना हो जाता है. Yes, ma'am. ओके. सिमिलरली एल्वियोलाई जो है उसको क्रम्बल करके अंदर डाला है, आप उसको खोलोगे तो कम से कम ये सर्कल जितना, ये स्क्रीन जितना तो हो ही जाएगा, है ना. ठीक है. तो इसका जो एक एल्वियोलाई का सरफेस एरिया जो है वो 3 फुटबॉल ग्राउंड्स बना दे इतना है. Can you? One alveoli. Yes. One alveoli is important. Yes. Can you imagine कितना बड़ा होता है एक एल्वियोलाई, ठीक है. ये एल्वियोलाई का सरफेस एरिया इतना बड़ा क्यों है पहले वो समझो. Whenever you are breathing, ओके, जब आप सांस लेते हो तो आपके लंग में यहाँ से जो ऑक्सीजन एंटर हुआ है वो हर एक कॉर्नर के एल्वियोलाई तक वो ऑक्सीजन जो है वो पहुंच जाना चाहिए, दोनों तरफ. Am I right? Increasing area of absorption. Yes, to increase the area of absorption. बट आपके एंड तक जो आखिरी एल्वियोलाई है वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचना बहुत जरूरी है. Am I right? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Now see this. What is happening actually when you are respiring? हम partial respiration करते हैं क्योंकि we are not concentrating on our respiration first of all. और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम आराम से बैठकर सांस लें, है ना. जब इंसान थक जाता है तो क्या बोलता है, अरे थोड़ी सांस लेने दो, ऐसा बोलता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप ये इमेजिन करो जब हम पार्शियल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं उससे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो मिल रहा है. इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो. आप जब डीप ब्रीथ करोगे तो आपके लंग के हर एक एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचेगा और अगर हर एक एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आपकी बॉडी को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा. और जब पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं होगा. किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का हमला अगर हुआ है तो वो पूरी तरह से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. और तीसरी चीज, अगर आपको पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा
तो उस ऑक्सीजन का 70% पार्ट कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन में जाएगा, और आपको कभी भी लेजीनेस या आलस से फील नहीं होगा। आया समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. दैट इज वाई डीप ब्रीदिंग इज नेसेसिटी ऑफ अ। आप देख रहे हो आजकल न्यूज में लोग किस कमी से मर रहे हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन एयर में 21% है, तो कम है? कम तो नहीं है, बट फिर भी लोग उसको ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एल्वियोलाइज जो हैं वो इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से डैमेज हो गए। दे आर डैमेज। वंस दे आर डैमेज दे कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। दैट्स वाई आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देना पड़ता है, और उसकी वजह से पेशेंट जो है जब ऑक्सीजन नहीं है तो वो मर जाता है। आया समझ में? Yes, ma'am. Good. So Yes, ma'am. this is how it is happened. So the whole respiratory system किस तरीके से organized है वो समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. I'm giving you a very simple picture of alveoli is the here. एक मटके की तरह है, like this, और उसके पास में से ही ब्लड वेसल्स जो हैं वो आसपास उसके घूम रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और CO2 को क्या करना है? बाहर निकलना है। तो यहाँ पर से क्या पास हो रहे हैं? RBC। यहाँ से क्या जा रहे हैं? RBC जा रहा है, ब्लड जा रहा है ना, तो RBC जा रहा है, प्लाज्मा जा रहा है, सब ब्लड पूरा जा रहा है। अब ये RBC क्या करेंगे? CO2 देते जाएंगे और ऑक्सीजन को लेते जाते हैं। ठीक है, they will give out CO2 and they will take up oxygen. So ये ब्लड वेसल जब एक एल्वियोली को क्रॉस करता है तो वो पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड CO2 is being given back to alveoli, तो ताकि जब आप सांस छोड़ो तो CO2 पूरा बाहर निकल जाए। Now the picture is clear to you? Yes, ma'am, it's clear. Good. So let's proceed then. Okay, so this is what the whole respiratory system is. This is how it is working, and this is how it is helping out in respiration. Okay, now ये जो coverings है, especially alveoli की, ये किस आपने टिश्यू पढ़ा है क्लास 9th में, तो I think you must be aware of epithelial tissue. Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. this tissue is a thin sheet. वो क्या है? एकदम thin sheet है जो alveoli का स्ट्रक्चर बनाती है। That is why it can be crumbled, क्योंकि वो क्या है? शीट की तरह है, तो वो easily crumble कर सकते हैं। This epithelial tissue, क्योंकि वो बहुत thin है, तो it has great absorption power. उसके पास क्या है? एब्जॉर्प्शन पावर, और यू कैन से डिफ्यूजन पावर उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए रेस्पिरेटरी गैसेस जो हैं वो इजीली एक्सचेंज हो सकती हैं। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, नाउ सी दिस। अब आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ इस जगह पर ऑर्गेनाइज्ड है। ओके, तो ये जो सिस्टम है वो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहे, अपनी जगह पर ही मतलब सारा काम करे, उसके लिए ये जो पूरा यूनिट है इसको एक कवरिंग दिया हुआ है, जस्ट लाइक अ लैमिनेशन। एक तरीके से क्या दिया हुआ है? लैमिनेशन है, और उस लैमिनेशन वाली लेयर को हम बोलते हैं प्लूरा। उसे क्या बोलते हैं? प्लूरा। अब देखो बहुत ध्यान से कि ये जो प्लूरा है वो 2 लेयर्स है। देयर आर 2 लेयर्स ऑफ प्लूरा विच आर कवरिंग दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एक शीट है, उसके ऊपर दूसरी शीट फिर बिछा दी है। ठीक है,
तो इन दोनों शीट के बीच में एक फ्लूइड की प्रेजेंस है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, दैट इज प्लूरल fluid, and these two sheets are pleural. Understood this part? Yes, ma'am. Understood. Okay. Now these two layers are because they are laminating your respiratory system, so they are protecting you from any type of shock. आपको कभी भी कोई जैसे यहाँ पर अगर जोर से मार देता है तो आपका ऐसा नहीं है कि लंग्स डैमेज हो गए और अब आप मर जाओगे, अब हार्ट काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो शॉक को है वो थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होगा, बट वो स्लोली वो जो पूरा चीज है वो अपने आप डिफ्यूज हो जाता है। रीजन इज दिस प्लूरा, बिकॉज दिस कवरिंग is protecting you from mechanical shocks and keeping the system intact at one place. That is called pleura, the membranous layer. Is this part is clear? Yes, ma'am. Good. Now see this. ये पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब नॉस्ट्रल से स्टार्ट करोगे तो ट्रैकिया वगैरह जहां तक आता है वहां तक, अंदर आपको प्रेजेंस ऑफ, जैसे नॉस्ट्रल में हेयर्स हैं वैसे यहाँ पर आपको प्रेजेंस ऑफ सीलिया मिलेगा। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। एंड दे कीप ऑन बीटिंग। ये सीलिया बस किस तरीके से, जैसे कोम होता है, कोम में कैसे लाइंस होते हैं पास पास एकदम से, ये सीलिया भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है वो रिदमिकली मूव करते हैं, जस्ट लाइक दिस। व्हेन दे आर मूविंग रिदमिकली तो वो क्या करते हैं कि वो सारी डस्ट और अनवांटेड चीज को बाहर फेंकते हैं रिदम से। तभी आपको जब डस्ट या मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है तो आप स्नीज करते हो, छींक देते हो, ठीक है? तो वो सारी चीजों को बाहर निकाल देना और अच्छी चीज को फिल्टर करके अंदर देना, दैट इज पार्ट इज डन बाय दिस cilia. Got it? Yes, ma'am. Good. Okay? Yes, ma'am. Got it. Yes. Now see Yes, this. ma'am. Okay, fine. Now see this. When you are breathing, अभी हमने तो ये रेस्पिरेशन समझा कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, जब एयर अंदर गई कहाँ तक गई और क्या क्या चीजें हुई वो समझ लिया। लेकिन ब्रीदिंग से और क्या चेंजेस होते हैं, दैट पार्ट वी विल सी. Okay, so breathing you have to understand that once you have your respiratory tract and you have lungs like this, these lungs are resting on the curved structure called diaphragm. Okay, curved structure that is called diaphragm. Okay, and these lungs are well protected by your skeletal system, that is rib cage. आपका rib cage है वो भी यहीं पर present है, and this rib cage will protect your lungs because lungs जो है वो soft tissues है, तो rib cage the bones हैं वो उसको protected रखेंगे और साथ में नीचे, ताकि वो digestive system के साथ लड़ाई ना करे, इसलिए एक पार्टीशन दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये एक मस्क्यूलर फ्लैप है। ओके, नाउ बिकॉज यू आर स्टडिंग ह्यूमन एनाटॉमी, अभी आप क्या पढ़ रहे हो? ह्यूमन एनाटॉमी। सो यू आर सिटिंग एट योर होम, जस्ट फील दैट, कीप योर हैंड लाइक दिस जस्ट अबव समवेयर हियर एंड you will feel one curved structure in just after your rib cage. Can you feel it? Yes. That is how the anatomy is being studied. Okay, इसमें आपको शाई फील करने की जरूरत नहीं है, एनाटॉमी ऐसे ही पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर आपको आपके ऑर्गन्स में नहीं समझ में आएगा तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि वो चीज कहाँ पर है। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो रिब केज इज देयर, रिब केज के बाद कर्व्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। अब देखो कि पूरे ब्रीदिंग के मूवमेंट में क्या क्या चीजें कैसे कैसे मूव होती है। So if I talk about breathing, we have Ma'am, this diaphragm is a bone or something. muscular flap.
Means It's a hard muscle which is dividing respiratory system and digestive system. okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, fine. So breathing. So I will say when you are doing inspiration, that means inhaling, and expiration, exhaling. Okay. See this? What is happening to which part? What is happening to which part that you will see? Let me clear this part. Hmm. Inhalation, I will write inhalation and exhalation. Or inspiration or expiration can also be written. So when you are breathing, there are so many changes occurs in these parts. So first we will write down regarding diaphragm. ओके जब आप इनहेल करते हो तो दैट मीन्स आपके चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए एम आई राइट Yes, ma'am. ओके दैट मीन्स लंग्स को ज्यादा एयर जो है वो अपने अंदर ले रहा है वॉल्यूम जो है लंग्स का बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा प्रेशराइज करेगा डायाफ्राम को नीचे की तरफ तो जब आप इनहेल करते हो तो डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है अंडरस्टूड और जब आप एक्सेल करते हो तो वो वापस ऊपर जाके डोम शेप हो जाता है कौन सा शेप बन जाता है डोम और जब आप इनहेल करते हो तो डाउन जाता है और थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है एकदम एग्जैक्टली फ्लैट नहीं बोल सकते बट इट गेट्स फ्लैटन्स एज कंपेयर टू द डोम शेप अंडरस्टूड दिस Yes, ma'am. okay then I will talk about rib cage so rib cage जो है वो ऊपर की तरफ जाता है जब आप इनहेलेशन करते हो और अपवर्ड आई विल से अपवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों चीजें अलग हैं ठीक है थोड़ा सा ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव होता है दैट इज the rib cage. So opposite of this, when you exhale out, it goes down and in. Understood this? Good. Now जो आपका ये जो पूरा रीजन है जहां पर ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अरेंज्ड है उस जगह को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी उसको क्या बोलते हैं thoracic cavity okay Ma'am, so it is behind the ribcage. what Ma'am, this is behind the ribcage. thoracic cavity Yes, ma'am. thoracic cavity मतलब स्पेस बेटा चेस्ट वाला जितना स्पेस है उसमें रिबकेज वगैरह सब घुस गया ठीक है एवरीथिंग सो thoracic cavity का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा जब आप इनहेल करते हो और जब एक्सेल करते हो तो वो डिक्रीज हो जाएगा ये समझ में आया Yes, ma'am. ठीक है अनदर थिंग इफ आई से दैट मैं एक बहुत छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ समझ यू हैव वन बोन लाइक दिस क्योंकि आपको स्केलेटल सिस्टम सिलेबस में नहीं है इसलिए ठीक है ये सेंट्रल बोन है जो आपके चेस्ट के सेंटर में होता है इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन नो मैटर यू आर अ मेल और अ फीमेल वो सभी के लिए ब्रेस्ट बोन है ठीक है एंड द रिब्स आर कमिंग फ्रॉम द बैक एंड दे आर अटैचिंग टू दिस पर्टिकुलर ब्रेस्ट बोन ठीक है तो जब वो अटैच होती हैं बेटा तो इन रिब्स के बीच में भी इस तरीके से मसल्स की प्रेजेंस है क्योंकि रिब्स भी कोलैप्स नहीं होने चाहिए सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मसल्स इन बिटवीन
बहुत थिन मसल्स हैं और इनको हम बोलते हैं इंटर कोस्टल मसल्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आपके सिलेबस से, जस्ट ध्यान दो। अब क्या होता है कि जब सपोज ये ब्रेस्ट बोन है एंड रिब्स आर कनेक्टेड टू इट, सो व्हेन यू आर ब्रीदिंग, सो व्हाट विल हैपन, द रिब्स, बिकॉज रिब केज जो है वो ऊपर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है, तो उसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, बस एक इलास्टिक की तरह थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। एंड दीज इंटरकोस्टल मसल्स वो इतना इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं सो दैट इट कैन मूव इजीली एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन यू आर एक्सहेलिंग। अंडरस्टूड? सो दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, सो इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो जब आप सांस अंदर लोगे तो स्ट्रेच होंगे, स्ट्रेचिंग हो जाता है इनका। सो यू विल से कॉन्ट्रैक्शन। और जब आप सांस रिलीज कर देते हो तो वो अपने पोजीशन पे आराम से आ जाते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? रिलैक्स्ड। क्लियर? छवि, आप कुछ खा रहे हो, आपका स्पून का आवाज आ रहा है, आपका माइक ऑफ कर दो। ठीक है? सो इंटरकोस्टल, ये Sorry, ma'am. it's okay, it's fine. Okay, you are free to wait, beta, but just see that your mic should not be on because the system starts vibrating when some noise is coming. Understood? Okay, so these things you have to see at the time of inhalation, at the time of exhalation: diaphragm, rib cage, thoracic cavity, and intercostal muscles. Very important if you are preparing for Olympiads and all that. उसमें इस पार्ट से ही क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Understood. Okay. Yes, sir. Now we will talk about air pressure. ओके, अंदर जो एयर है वो क्यों आ रही है? एयर जो है वो हम सांस ले रहे हैं इसलिए तो अंदर जा रहा है, लेकिन जो हम सांस ले रहे हैं वो इजीली एयर अंदर चली जा रही है और इजीली बाहर आ जा रही है। तो वो किस तरह से हो रहा है? दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट इफ दिस इज अ एल्वियोली, लंग्स के अंदर की बात हो रही है, एंड दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर एयर है और अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है? सो अंदर जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा तभी बाहर की एयर अंदर आ पाएगी। Yes, sir. है ना? High pressure is okay. यस, यहाँ पर एयर ज्यादा है, अंदर एयर कम है, देन एयर विल मूव इनसाइड। इनहेलेशन कब होगा? जब एल्वियोली में एयर प्रेशर जो है वो कम होगा, तभी इनहेलेशन पॉसिबल होगा। ओके, और एक्सहेलेशन क्या होगा? अंदर एयर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनवायरनमेंट, then you will exhale out. So air pressure should be more, then only the exhalation should be done by your lungs, so that smoothness of breathing should be done clearly. Got it? Yes, sir. Got it. Good. So this is how it should work regarding respiration. And when you control your breathing at the time of meditation and all that, okay, see हमारे जो 5 liters of approximately 5 liters of blood है, उसके लिए हमें 5 liters of air की जरूरत होती है। ठीक है? तो हम एक बार में 5 लीटर तो इनहेल नहीं कर सकते हैं, तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए दिन में एक बार एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करना जरूरी है, सो दैट
जो हमारे लंग्स हैं उसका कुछ पार्ट है वो स्टोरेज का भी काम करता है, अच्छी एयर को अपने पास स्टोर्ड रखता है सो दैट वो उसको अपने हिसाब से एक्सचेंज कर सके, अपने हिसाब से रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो अगर आप डीप ब्रीदिंग दिन में 15 मिनट्स भी करते हो तो आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन बैलेंस है ना, जो आजकल पता है वो आपने कोरोना की वजह से देखा होगा कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है बॉडी में, तो फिर इसलिए पेशेंट को दिक्कत हो रही है। तो अगर आप ये डीप ब्रीदिंग कर लोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल कभी डाउन नहीं जाएगा, और डाउन नहीं जाएगा तो कोरोना अटैक्स नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? Yes, ma'am, understood. Good. Okay, so just go through your books, and if you have any doubts you can ask. No doubt. No doubt. पढ़ने की मेहनत कौन करे, ऐसा हो गया? Ma'am, Yes. ma'am, can you again explain about thoracic cavity? Thoracic cavity is this much space बेटा, जिसके अंदर रिब केज है, जिसके अंदर आपके लंग्स हैं, वो सारी स्पेस क्या है? thoracic cavity है। Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Okay, just read, and those who are having doubt ask me, those who don't have wait. Ma'am, if the question comes to the exam, Hmm. draw the diagram of complete human respiratory system. Hmm. So we don't need to draw that human being at all. No, we no, just no. need to draw whatever you had drawn. My diagram are worst. Okay, so but see this, I am drawing to explain you, I am not drawing to gain the marks. So just see that when you are drawing they should be neat, very neat and proper, and you that outline of a human being is given to make you understand that exactly where the things are being located. Got it? Because you need to have some proportion ना, आपको पता होना चाहिए कि लंग्स कितने बड़े हैं, हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सब आपको प्रपोर्शन समझ में आना चाहिए, इसलिए वो ह्यूमन आउटलाइन दिया होता है। Okay, ma'am. ओके, somebody is asking me Krebs साइकिल और पायरुवेट वाला एक्शन समझाओ। अच्छा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बेटा, उसी के कुछ स्टेप्स हैं। क्रेब्स साइकिल, मैं आपको सिर्फ एक स्टेप बता देती हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज दैट इज नॉट योर रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सी, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन के जो सेल्यूलर वाला हमने पढ़ा है उसके 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 पार्ट है बेटा, आपकी बुक में शायद क्रेब्स साइकिल का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा होगा, तो बस इतना समझो कि ग्लाइकोलिसिस जो है मतलब ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मतलब टू ब्रेक, किसको ब्रेक करना है हमको? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, और जब अब एक चीज सिंपल है कि ग्लूकोज जो है वो 6 मॉलिक्यूल का होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पायरुविक। What is KC? केसी इज अ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। ओके, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है 3 मॉलिक्यूल में, तो 2 पायरुवेट्स बन जाते हैं, क्योंकि 3 में ब्रेकडाउन हुआ तो 3 मॉलिक्यूल के 3 ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड पायरुवेट और पायरुविक एसिड, कुछ भी बोल सकते हो। ये पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाता है और वो ढेर सारे
ATP वगैरह बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, और रॉ मटेरियल बनाने में हेल्प करता है। वो सब के सब इस तरफ जाते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम, एनीथिंग यू कैन से, ओके। सो ETC भी हो सकता है, ETS भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है और वहां पर ATP यूटिलाइज करने के लिए रिलीज होने लग जाते हैं। अंडरस्टूड? आई थिंक इट मस्ट बी गिवन दैट एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATPs रिलीज होते हैं, दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये 36 ATPs जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होते हैं और ये 3 स्टेप्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। Okay, so this is how it is being done, and you don't have to study this part in detail, okay, because 11th biology is having this whole chapter. Please, you are most welcome to study that. You have your next class Yes, ma'am. at what time? 6 And from 6:30. Okay, fine. So this is how the things are. This is what regarding the respiratory system is. Next system which that Ma'am, is explain electron transport system. No, what? electron transport system. See, whatever things are being prepared by these two steps, they are raw materials. So that has to be means polished and everything has to be done so that a new fresh ATPs can be formed and they can be utilized, ready to use. They can be utilized by the body. So ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो ये फ्रेश ATPs बनाता है जो रेडी टू यूज होता है। क्लियर? You just go through your books after the class and read them carefully. And in the next class, which system is being mentioned? Circulatory. Transportation. Transportation in plants. Human beings. Human beings. First is human beings. Ma'am, heart is the Yes, yes, that is what the circulation is. Circulatory. Heart दिया होगा, blood दिया होगा, दिया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम नेक्स्ट क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी टू हैव अ बिग टफ डायग्राम्स टू बी ड्रॉन फर्दर। गॉट इट? Yes, ma'am. Got it. गुड। सो यू कैन लीव। Thank you, ma'am. ओके, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Need to leave during this break or we should be connected? you will leave and you will join again whatever new you get your IDs and passwords. Okay, ma'am.